आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बोधिसत्वा पर एंड दिस इज दीपक गौतम हियर टुडे विद यू टू डिस्कस एथिक्स पेपर 5 ऑफ आवर मेंस टेस्ट सीरीज प्रोग्राम। वेल फ्रेंड्स, दोज ऑफ यू जिन्होंने ये टेस्ट सीरीज अभी तक ज्वाइन नहीं करी है, दे कैन ज्वाइन अस बाय हिटिंग द लिंक गिवन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑन आवर टेलीग्राम चैनल। अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं एम्फेसिस देना चाहूंगा इस बात पर कि ये टेस्ट सीरीज प्रोग्राम इस तरीके से माइन्यूटली डिजाइन करा गया है कि इट विल असिस्ट यू टू अंडरस्टैंड the knowledge base which you are having at this juncture. Apart from that, you can enhance your writing skills by learning how to understand the question, how to structure the question, and how to approach the question. Apart from that, this discussion will definitely work as a value addition to your knowledge which you have gathered over the period of time. So friends, let's get back to our discussion again. This first of all we shall see the long questions. पहला क्वेश्चन था, while explaining the aptitude, briefly discussed those aptitude which civil servants must possess. Question was clear and it was very easy, but one thing many of you have taken somewhere else. जब आप aptitude की बात कर रहे हैं तो what does aptitude means? Aptitudes are certain innate and inborn qualities. ये innate और inborn qualities होते हैं which are there in you already. These qualities can be further enhanced, further sharpened, but they cannot be or they can hardly be developed afresh. Okay, fine, that means you are having good piloting skills that can be further enhanced. But अगर आपको एक्रोफोबिया है, अगर आपको हाइट से डर लगता है, तो आपको एक अच्छा पायलट नहीं बनाया जा सकता है। तो आपको यह समझना है कि वो कौन सी एबिलिटी हो सकती है इंडिविजुअल के अंदर जिनको हम एप्टीट्यूड का नाम दे सकते हैं, वो कौन सी कैपेबिलिटीज या पोटेंशियल्स हो सकते हैं एक इंडिविजुअल में जिनको हम एप्टीट्यूड का नेम दे सकते हैं। आप लोगों ने क्या करा, आप लोगों ने जो फंडामेंटल वैल्यूज होती है सिविल सर्विसेज, लाइक इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, ओपननेस, ये सारी चीजें आपने डाली, बट आपने जो क्रक्स था वो नहीं डाला। आप क्रक्स को देखिए। नाउ लेट मी एम्फसाइज ऑन दोज फैक्टर्स व्हिच आर those values or those potentials which a civil servant must possess. First is ability to deal with different situations. You have seen that few people are not able to adjust to the different situations. A civil servant must have this capacity. Otherwise, he cannot adjust to the demand of state of affairs which occurs around him every day or in specifics. Apart from that, if you'll go, एक सिविल सर्वेंट हार्ड वर्किंग होना चाहिए, उसके अंदर डिलीजेंस होना चाहिए, उसके अंदर वर्किंग थ्रू डेडलाइन की कैपेसिटी होनी चाहिए। कुछ लोगों का क्या होता है कि डेडलाइन आती है दे कोलैप्स, कुछ लोगों का होता है जो डेडलाइन में और अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। सिविल सर्वेंट्स का आप देखिए तो उनको हमेशा डेडलाइन में परफॉर्म करना होता है। जैसा कि अगर अभी आप देखें तो कोविड-19 वाले पीरियड में हार्ड वर्क जो है वो एग्जामिन हो रहा है किसी भी सिविल सर्वेंट का। आप देखिए डिलीजेंस कितना है उनके अंदर, कितने दे आर अवेयर अबाउट their surrounding and the challenge, it is also being checked in this particular era. Apart from that, they are also working through deadline. Every time prime minister is putting some deadline in front of the civil servants that they have to perform in that particular time period, and they have to improvise the situation, isn't it so? So these things, these minute differences you are supposed to understand here. The next is about good understanding of the situation, that is knowledge person. आप देखिए सिविल सर्वेंट सर्विसेज में आप किसको सेलेक्ट कर रहे हैं, आप उस इंडिविजुअल को सेलेक्ट कर रहे हैं जिससे आप सिविल सर्विसेज में या आईएएस के पेपर में पीटी एग्जाम दिलवा रहे हैं, उसके अलावा 9 मेंस डिस्क्रिप्टिव पेपर लिखवा रहे हैं, उसको आप सब कुछ पढ़ा दे रहे हैं, देन आप इंटरव्यू में भी उसको चेक कर रहे हैं। दैट मीन्स यू आर चेकिंग दैट पर्सन ऑन ईच एंड एवरी काउंट। Fine. So that person should be knowledge person. So he should know the geography, the culture, the situation, everything of that particular place and circumstances he is dealing in. This is something you are supposed to know. Fine. So next, if you'll go, soft skills, empathy, इमोशनल इंटेलिजेंस। सम पीपल आर, देखिए इस बात में कोई दो राय नहीं है, कुछ पीपल सिचुएशंस को बचपन से ही अच्छे से बैलेंस करना जानते हैं। दे कैन लर्न हाउ टू डील विद द हार्ड सिचुएशंस। कुछ बच्चे नहीं कर सकते हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई वो नहीं कि आई कैन फ्यू पीपल, क्योंकि एप्टीट्यूड इसीलिए एसेंशियल होता है किसी भी सोसाइटी में, कि हम एक पर्टिकुलर टैलेंट को हार्नेस कर सकें। किसी के अंदर इंजीनियरिंग स्किल अच्छे होंगे, किसी के अंदर डॉक्टोरियल स्किल्स अच्छे होंगे, किसी के अंदर सोशल वर्किंग स्किल्स अच्छे होंगे। तो हमारी जरूरत होती है कि हम सारे स्किल्स को आइडेंटिफाई करें और उनको लेके आगे बढ़ें। दिस इज समथिंग यू आर सपोज टू राइट। ओके, सो व्हेन यू आर राइटिंग द फंडामेंटल वैल्यूज, सो सम फंडामेंटल वैल्यूज कैन बी पार्ट ऑफ दिस, बट नॉट ऑल। यू आर सपोज टू राइट दिस आंसर ऑन दिस लाइन। फर्दर, next question is about the integrity and the honesty. The clear difference is about the qualitative aspect. Integrity is about the qualitative aspect. Honesty is not so. Integrity is like ना खाऊंगा ना खाने दूंगा,
ठीक है। ऑनेस्टी इज अबाउट कि मैं ईमानदार हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता दूसरे ईमानदार हैं या नहीं है। Okay, so this is the minute difference between honesty and integrity. So it is a qualitative aspect and the behavioral aspect. Let's take example of this. Integrity. If a person with integrity would say that stealing is not just a bad act; it is also bad mean to realize your end. Okay, it is not correct. But for honest person, it can vary. Okay, honest person say like he can steal, but when he will be asked, he will say yes, I have steal. ठीक है. So this is the minute difference you are supposed to understand in this part. Further, what are the challenges which integrity is facing? Integrity in civil services is facing too many challenges. You have written these factors quite handsomely, many of you, but those who haven't written can infer to this part. Further, it is about the nexus corruption. Nexus corruption is of politicians, businessmen, police, contractors. This is nexus corruption that work in a function in a chain where one person is एक पर्सन को दूसरे पर्सन के करप्ट एक्ट से फायदा मिलता है. दिस इज नेक्सस करप्शन. नेक्स्ट, लीकिंग और शेयरिंग इन्फॉर्मेशन. आप देखते हैं कि कई सारे फाइलें, आप अभी रिसेंटली था कि ये फाइल चॉक्सी की फाइल जल गई, वो फाइल जल गई, क्योंकि होता क्या है कि वही सिविल सर्वेंट्स, वही एडमिनिस्ट्रेटर्स, वही इंडिविजुअल हेल्प करे होते हैं इन चीज़ों को बाईपास होने में. फर्दर, मिसयूज ऑफ पावर. सबसे ज़्यादा मेजर चैलेंज जो इंटीग्रिटी का है वो मिसयूज ऑफ पावर है, क्योंकि अगर आपके पास आपकी आर्बिट्रीनेस है आपकी फंक्शनिंग में और आपके ऊपर कुछ चेक एंड बैलेंसेस नहीं है, इन सारी कंडीशंस में क्या होता है कि वहां पर इंटीग्रिटी हमेशा कॉम्प्रोमाइज हो जाती है. इट इज हैपनिंग ऑल अक्रॉस योर एडमिनिस्ट्रेटिव स्पेक्ट्रम. अपार्ट फ्रॉम दैट, इंसिडेंट ऑफ कोअर्सिव एंड कंपल्सिव करप्शन. मतलब लाइक आपके ऊपर कंपल्शन, आप बोलते हैं कि कई मतलब आपने सुनते हुए देखा होगा, अरे मैं इतने छोटे पद पे काम करता हूं कि मेरे को मेरे सीनियर्स का इतना प्रेशर है, मैं ईमानदारी दिखा नहीं पाता. आई एम ऑनेस्ट but I cannot show my honesty. I have integrity, but I cannot show my integrity, because if I'll show my integrity, then I will be somewhere ditched around anywhere. So this is something you are supposed to understand at this part. So this concluding para is very important. The loss of integrity at individual level is not a challenge, but loss of integrity at the इंस्टीट्यूशनल लेवल इज चैलेंज. अभी कोविड-19 से पहले से अगर आप पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम की तरफ देखते तो आप पूरे इंस्टीट्यूशन को एक तरीके से करप्ट वैल्यूज में कंसीडर कर रहे थे. आप आप अगर सीबीआई के बारे में बात करें तो केज पैरेट बोला सुप्रीम कोर्ट ने इसको. क्यों बोला? तो यानी पूरे इंस्टीट्यूशन की इंटीग्रिटी को कॉम्प्रोमाइज कर दिया, और जब इंस्टीट्यूशन की इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज होती है तो वो ज्यादा डेट्रीमेंटल होती है. फाइन. सो दिस इज समथिंग यू आर सपोज्ड टू राइट. वेबेरियन मॉडल ऑफ ब्यूरोक्रेसी. अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप जाके जरूर पढ़िए, गूगल इट आउट, हैव सम एनसाइक्लोपीडिया पे जाके पढ़िए. इट इज वेरी इसेंशियल टू अंडरस्टैंड द वेबर्स मॉडल ऑफ ब्यूरोक्रेसी. अगर नहीं है तो आप मोहित भट्टाचार्य की बुक पढ़ सकते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर वह बुक है. सो दिस इज समथिंग यू आर सपोज्ड टू अंडरस्टैंड, बिकॉज इफ यू वांट टू बी अ ब्यूरोक्रेट, in his model of bureaucracy he was emphasizing more on the neutrality, he was emphasizing objectivity, he was emphasizing on rule based, he was emphasizing on career based bureaucratic system. He was emphasizing on that they should be given a particular career so that they can excel it through. Fine. So this is something he was emphasizing. He renounced the practice of emotions, feeling in the field of administration. Likewise, when he was identifying objectivity, the objectivity means taking the decision on the basis of certain observable phenomena. That means certain evidences, fact, rationality, reports. So you are taking decision on the basis of those phenomena which can be judged, which can be easily seen, which are mathematical in nature rather than subjective aspect. Okay, कि ऐसा होना चाहिए था. So अब था थी थे में बात नहीं करेंगे, होगा कि गेम में बात नहीं करेंगे. You will talk in that which is there, which is existing, which can be proved. So this is something. So why it is essential, what elements he attached to it. He was saying that when there is objectivity, there will be impartiality, there will be non-partisanship, there will be trust, there will be sense of justice. When there will be a sense of justice, people will see, like, okay, decision will be taken on the basis of these merits. Okay, सबूत के आधार पर कानून ने अपना डिसीजन ले लिया. तो उन सब चीज़ों को आप देखोगे तो दैट विल बी वेरी मच रिफ्लेक्टिव ऑफ द फेयरनेस इन द एडमिनिस्ट्रेशन. एडमिनिस्ट्रेशन में फेयरनेस होगी, अलाइनमेंट नहीं होगा, नेपोटिज्म नहीं होगा, फेवरेटिज्म नहीं होगा, करप्शन नहीं होगा, तो क्या होगा? वो एडमिनिस्ट्रेशन बहुत सर्विस ओरिएंटेड होगा, मेरिटोरियस होगा और उसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा
होगी। नेक्स्ट, राशनैलिटी होगी, ऐसे सिस्टम है, और जो डिसीजन लिए जाएंगे वो साइंटिफिक फेनोमेनास पे लिए जाएंगे, साइंटिफिक डिसीजन मेकिंग उसमें होगी, जो भी होगा एविडेंटरी होगा। सो फर्दर इन दिस क्वेश्चन दिस एलैबोरेशन इज देयर कि उसका क्या रिजल्ट होगा। तो रिजल्ट विल बी विच इज ऑल्सो एडवांस है। आप इस पोर्शन को कटेल कर सकते हो, इस सारी इंफॉर्मेशन को ऊपर वाले पॉइंट्स के अंदर में लिख के रख सकते हो। काफी सारे स्टूडेंट्स ने बहुत ज्यादा एलैबोरेट करा, मैंने सिंपल आपसे कमेंट करने को बोला था। आपको क्या करना था इस क्वेश्चन में, इफ यू रीड दिस, कि ऑब्जेक्टिविटी इज वन ऑफ द मोस्ट चेरिश वैल्यू इन वेबरिन मॉडल ऑफ ब्यूरोक्रेसी कमेंट। तो आपको ऑब्जेक्टिविटी डिफाइन करना था। बहुत सारे लोगों के आंसर तो ठीक थे, लेकिन ऑब्जेक्टिविटी की डेफिनेशन अच्छी नहीं थी, उसको आपको इंप्रूव करना है। और फिर आपको सिंपली उसकी सिग्निफिकेंस या क्या क्या बेनिफिट है, क्या एडवांटेजेस है, उसमें लिख के आपको आगे बढ़ जाना था। उससे ज्यादा आपको उस चीज में डुएल नहीं करना था। Next question is about the Kabir. Kabir is very much relevant as he was relevant in the 15th-16th century. His idea on monotheism against priesthood, his idea of caste equality, his idea of gender equality, his idea of being sent in a family life, all those ideas can be borrowed in modern days context. So the answer is there. I'm not supposed to elaborate it much because it is very it can be understood very easily. बहुत सिंपल आंसर था, बट लोगों ने इसको लिखा नहीं अच्छे से, कई बच्चों ने इसको लिखा। गुरु नानक की अगर आप टीचिंग्स की बात करें, ही वाज टीचिंग मोनोथीसिज्म, ही वाज टीचिंग अबाउट द सर्विस टू ह्यूमैनिटी, ही वाज टीचिंग अबाउट यूनिवर्सल ब्रदरहुड, ही वाज टॉकिंग अबाउट द selfless service to people. He was talking about renouncing the practice of pilgrimages, and he was asking you to submit yourself to the Vaheguru and the ultimate being. He was also saying that one must away from the evils of ego, anger and so on and so forth. So whatever whatever values he has inculcated along with Kabir laid the foundation of cosmopolitan culture which was later harnessed by Akbar. अकबर को जो एक अकबर के इमर्ज होने में एक भक्ति मूवमेंट का भी बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि उसने क्या करा था, हिंदू मुस्लिम यूनिटी को फॉस्टर करा था और एक ऐसी फाउंडेशन दी थी जिसपे ऐसा एक बड़ा एम्पायर इवॉल्व कर सकता था। Further, next question is about impartiality. Impartiality means equal treatment to all. That means you will make a decision on the basis of certain fair phenomena. और फेयर आपका एडमिनिस्ट्रेशन होगा जब आप चीज़ों को इक्वालिटी से देखेंगे, तो वहाँ एक सेंस ऑफ जस्टिस आएगा and there will be majority of other good things. Apart from that, the last question is about the works of Kabir. And important work of Kabir was, मेजर वर्क वॉज बीजक। और आपको मैं बता दूं 15th सेंचुरी में बीजक नहीं लिखा गया था, इट वॉज समवेयर इन द ये बातों उसमें क्या बोलते हैं, श्रुति के माध्यम से चल रहा था। बट 17th सेंचुरी में इसको कंपाइल किया गया। तो जो भी कबीर के वर्क कंपाइल करे गए हैं और जो भी अच्छे से लिखे गए हैं वो बाद में लिखे गए हैं। तो अगर आप बीजक को थोड़ा एक्सप्लेन करके लिख देते तो दैट वुड बी इनफ। तो आप समझिए कि आप क्वेश्चंस में कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। बाकी आप देख सकते हैं आकाश थोड़ा सा काम करिए, थोड़ा आप काम कर सकते हैं उन चीज़ों पर जो यहाँ पर आपके लिए बहुत इलेबरेटली मैंने बोल रखा। लोकेश, चीज़ें ठीक थी, बस थोड़ा सा मेंस आंसर जो लॉन्ग क्वेश्चन थे उसमें आप थोड़ा काम करना होगा राइटिंग में। मीन्स कि आप फ्लो कहीं ना कहीं मिस कर जाते हो क्वेश्चन की, और कहीं कहीं पे आपकी इन्फॉर्मेशन काफ़ी कम भी थी। तन्मय, यू रोट द टेस्ट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, यू आर यूजिंग टू मैनी वर्ड्स, ओके। ट्राई टू क्रिस्टलाइज द कॉन्सेप्ट। फर्स्ट क्वेश्चन में फंडामेंटल वैल्यूज वाली जो मैंने ऊपर डिस्कस करी दी थी। सेकंड क्वेश्चन में जो स्ट्रक्चर था इंटीग्रिटी, और जब आप ऑनेस्टली लिख रहे हो तो स्ट्रक्चर को थोड़ा सा और अच्छे से आप उसको ना लिख सकते थे। बाकी आपका सारा पेपर अच्छा था। और जो मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन में एक में 3 मार्क्स आपको मिलना चाहिए था, बट आई गेव यू 2 मार्क्स। दैट इज जस्ट बिकॉज कि उस क्वेश्चन में आपने बहुत ज़्यादा वर्ड्स यूज कर दिए थे, इतने यू कैन नॉट अफोर्ड इन द जनरल एग्जामिनेशन। अनुराग, वो कुछ गलती मत करिए, आप क्वेश्चन लिख दीजिए, मैं एवेल्यूएट करके आपको पर्सनली भेज दूंगा वो क्वेश्चन। दैट वाज गुड। प्रतीक, कुड बी बेटर इफ यू फर्दर डिवाइड द पॉइंट्स। आपने क्या करा था उस वाले पोर्शन में, उसको सब डिवीजन आप कर सकते थे फर्दर। अमन, वेल परफॉर्म बच्चा, यूपीएससी स्टूडेंट हो और यू आर डूइंग वेरी गुड। कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर द फर्स्ट टेस्ट एंड होप आप ऐसे ही आगे लिखते रहेंगे। सुरभि, यू वर फेनोमेनल दिस टाइम। आपके सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट अप टू मार्क थे।
बस फर्स्ट पेपर में जो अभिव्यक्त जो वर्गीकरण करा था आपने इसका वो थोड़ा सा मुझे मतलब उतना सेटिस्फैक्ट्री लिखा तो अच्छा था, इसलिए मैंने आपको मार्क्स भी उतना अच्छा दिया है उसमें। वैशाली, नो नीड टू राइट, आपने क्या करा, हर चीज हर बाद में आप हर एक में एक पैराग्राफ ऐड करते जा रहे थे, उस पैराग्राफ को आप थोड़ा नहीं लिखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पूर्वा, अगेन गुड, थर्ड क्वेश्चन में आपने क्वेश्चन कंप्लीट नहीं लिखा, आप ऑब्जेक्टिविटी को ही ज्यादा लिख देते तो शायद एक मार्क्स आपको और मिल जाता उसमें। रत्नेश, वेल गुड, आपने अपना नाम लिख दिया था, वरना मुझे आपका डोमेन नेम यूज करना पड़ता। थैंक्स टू यू। लो, लास्ट क्वेश्चन को लिखा था आपने बाहर जाके, तो वो और कम इन्फॉर्मेशन भी उसमें कम ही थी, उतनी ज़्यादा नहीं थी। सो इधर डन, गुड, रेफर टू मॉडल आंसर फॉर अदर थिंग्स। सो ओके फ्रेंड्स, अगर आपको ये डिस्कशन नहीं फिनिश होता है हमारा, अगर आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करिए और अपने फ्रेंड्स को भी अलाइन करिए, ताकि they can also get benefited from this particular initiative. So thanks from the side of Bodhisattva and from my side, thank you for being with me.